ایک دن کافی تیز دھوپ تھی، گرم ریت آگ کی طرح تپ رہی تھی اور ایک انسان کو اس پر لٹا کر اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا تھا۔ اس انسان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، یا تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دے یا اس عذاب کو جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو برداشت کرتا رہے۔ اس انسان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، صرف ایک خدا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسیر کو ان کے بیٹے کے سامنے جب مکہ کے مشرکین خاص کر ابو جہل نے اسلام کو دبانے کی ہر کوشش کی، تب ان لوگوں نے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے وقت کا جب ایک پورا قبیلہ 3 سال تک جنگل میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کسی سے مدد لینے کی اجازت، ماں کے پاس اپنے بھوک سے بلکتے بچے کو دینے کے لیے صرف پتے اور جانوروں کے چمڑے ہوتے تھے۔ یہ تھا وہ وقت جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا قبیلہ بنو ہاشم کافروں کے بائیکاٹ کا شکار تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے اس طرح کی ہزاروں قربانیوں کے بعد پایا ہے؟ یہ سب صرف اس لیے تھا کیونکہ اسلام کو ہر حال میں دنیا تک پہنچانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام ہمیں کتنی آسانی سے مل گیا؟ کیا ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دولت میں پیدا کیا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں۔ انہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان، مال، عزت اور ہر چیز قربان کر دی، پھر بھی آج ہم اس کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی قربانیوں کا ذکر کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار ساتھیوں نے دین کے لیے دی تھی، اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اپنے دین کی اصل اہمیت کیسے جاننی چاہیے۔ اسلام کی شروعات ایک چھوٹے سے دعوت کے ساتھ ہوئی جو صرف کچھ لوگوں تک سیمت تھی۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلم خلا اسلام کا پیغام دیا تو جو لوگ ان کا احترام کرتے تھے وہ لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ایسے ظلم کیے گئے جنہیں سن کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ حضرت بلال کے عقیدہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی۔ حضرت بلال کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سامنے موت تھی لیکن پھر بھی وہ عہد عہد کہہ رہے تھے۔ اللہ کے لیے انہوں نے ہر ظلم کو سہ لیا اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہہ کر اپنے توحید کا عقیدے کو ثابت کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی مثال کا ایک حصہ ہے۔ یاسیر علیہ السلام کو تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر گرا دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور ان سے زور زبردستی کی گئی کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر مشرکین کے بتوں کی پوجا کریں، اور انہیں ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اب جانتے ہیں حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت سمیہ اپنے دین سے نہیں ہل رہی ہیں تو اس نے ان کے جسم پر بھالے سے وار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب مشرکین نے اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو حضرت حمزہ نے اپنی بے مثال بہادری دکھائی، لیکن مشرکین کے سرداروں نے انہیں مار گرانے کا منصوبہ بنایا۔ ہند بنت عتبہ جو حضرت حمزہ سے دشمنی رکھتی تھی، انہوں نے اپنے غلام واشی کو یہ کام دیا۔ واشی
जो एक माहिर नेज़ा बाज था, जंग के दौरान छुप कर बैठा था और मौका मिलते ही हज़रत हमज़ा पर नेज़ा मारा। वो नेज़ा उनके दिल के पार हो गया और हज़रत हमज़ा वहीं शहीद हो गए। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का से हिजरत करनी पड़ी। लेकिन ये हिजरत भी आसान नहीं थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर का वाक़या जानते हैं। जब वो गारे सोर में छुपे थे और काफिर उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और एक मौज़ा हुआ कि उस गार के बाहर मकड़ी ने जाला बना दिया और चिड़ियों ने घोंसला लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो महीनों से यहाँ कोई आया नहीं होगा। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। हिजरत के बाद मदीना में मुसलमानों ने एक नई ज़िंदगी शुरू की, लेकिन मुश्किलें यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मदीना के मुनाफिक और मक्का के काफिर उन्हें हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे। अब जानते हैं जंग में मुसलमानों का इम्तिहान। इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जंग के मैदान में भी उतरना पड़ा। हर जंग उनके लिए सब्र और यकीन का इम्तिहान बन गई। जंगे बदर में सिर्फ 313 मुसलमान और सामने 1000 काफिरों का काफिला, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए। ये अल्लाह पर ईमान और यकीन की मिसाल थी। फिर जंगे उहद हुआ। मुसलमान गलती कर बैठे, काफिर उन पर हावी हो गए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म हुए। लेकिन इस जंग ने मुसलमानों को सबक दिया कि अल्लाह की मदद सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जो अल्लाह के हुक्म को समझते हैं। फिर आया जंगे अहज़ाब की बारी। पूरे अरब ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद भेजी और मुसलमान अपनी मजबूत ईमान की वजह से जीत गए। यहाँ तक हमने देखा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अपने जान की परवाह किए बिना दीन को कायम रखा। इस्लाम हमें कितनी मुश्किलों से मिला है। अब एक नज़र डालते हैं अपनी ज़िंदगी पर। आज हमें इस्लाम बिना किसी मेहनत के मिली है। ना हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, ना अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। हम मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन क्या हमने इस नेमत की कदर की? हम आज अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हमें दुनिया के सारे ऐशो आराम और सुकून मिले हुए हैं। एसी के रूम्स हैं, कंफर्टेबल सोफाज हैं और लजीज खाना। लेकिन सोचिए, क्या यही असल ज़िंदगी है जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया? जानते हैं हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की कुर्बानियों को याद करें तो हमें समझ आएगा कि हमारी जिम्मेदारियां कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। सबसे पहले इस्लाम पर अमल करना। हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालना होगा। नमाज पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा और दीन का इल्म हासिल करना होगा। इस्लाम का पैगाम फैलाना होगा। जिस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, हमें भी अपने परिवार और दोस्तों तक दीन की बातें पहुंचानी होगी। फिर इस्लाम की अहमियत को समझना होगा। हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उसने हमें इस्लाम में पैदा किया और हमें अपने दीन को मजबूती से पकड़ने का पक्का इरादा करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपको अल्लाह ने ये पैगाम दिया होता कि आप इस्लाम को पूरी दुनिया तक फैलाने के जिम्मेदार हैं,
जिस तरह हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो क्या आप ये कर पाते? क्या हम उस तरह की मेहनत और कुर्बानी के लिए तैयार होते? सहाबाए कराम की वो इस्तिकामत, वो सब्र, उनका एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा और इस्लाम को फैलाना। लेकिन आज हमारा मकसद क्या है? सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना, दुनिया के मामलात में खो जाना। आज हम वो फर्ज क्यों नहीं निभा रहे हैं जो हमें आसान हालत में मिली है? कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, हम उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास, सदका देने का दिल नहीं करता और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने का इरादा नहीं करते। आज हमें इस बात को समझना होगा कि ये इस्लाम एक दौलत है, एक जिम्मेदारी है। हम अगर आज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन हमें उन सहाबा के साथ खड़ा होने का हक नहीं होगा। आइए अपनी जिंदगी को बदलते हैं, कुरान और सुन्नत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो काम करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। आज के दौर में सोशल मीडिया और दुनिया के फितनों से अपने ईमान को बचाना सबसे बड़ी जंग है। दुआ करें कि अल्लाह हमें इस फितने से बचाए रखे। अब जानते हैं हमारा अमल क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अमाल पर नज़र डालनी चाहिए। नमाज, कुरान की तिलावत और सुन्नत का फॉलो करना ये सबसे आसान और ज़रूरी स्टेप है। अपने घर से शुरू करें, कुरान को समझकर पढ़ना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। इस्लामी तालीम को कैसे फैलाएं? आज हम सबके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस्लामिक वीडियोस, हदीस और तफसीर शेयर करें। अगर आप यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ करते हैं तो दीन की बातें लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने आसपास देखिए, जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करें। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं होता, किसी को एक अच्छी बात सिखाकर या एक मुसलमान भाई के लिए दुआ करके भी सदका कर सकते हैं। अपने बच्चों और फैमिली को दीन की तालीम दें, उन्हें इस्लामिक वैल्यूज़, हदीस सिखाएं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को दीन के साथ जोड़ना ज़रूरी है। घर में छोटी गैदरिंग रखें जहाँ सब मिलकर दीन के बारे में बातें करें। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है अच्छा इखलाक। आपका मुस्कुराना भी सदका है। लोगों के साथ इंसानियत का सलूक करें। अच्छे अखलाक से लोगों को दीन की तरफ इंस्पायर करें। हर मुसलमान एक रोल मॉडल होता है और आप अपने अमल से इस्लाम का पैगाम फैला सकते हैं। दीन के लिए काम करना एक जिम्मेदारी है जो हर मुसलमान पर है। हमें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक वक्त और एक जज्बा अल्लाह के लिए निकालना होगा। सोचिए, अगर आप आज एक छोटी सी बात किसी के दिल तक पहुंचा देते हैं और वो उस पर अमल कर लेता है तो उसका सवाब क़यामत तक आपके लिए लिखा जाएगा। आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगी, दीन का इल्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। और हमेशा याद रखें, दीन की बातें आगे बढ़ाने से सदक़ा जारिया का सवाब मिलता है। क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि ये बातें दूसरों को भी पता होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने अजीज़ों तक शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमेशा याद रखें, इस्लाम सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि अमल का दीन है। अल्लाह हम सबको हक़ को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।